Srivastava. Today I am going to explain poetry number 2 of Flamingo book, which is for students of class 12th. The title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. In this video, I will tell you about the poem's background and title, stanza-wise explanation and poetic devices used in this poem. So first of all, let's start with about the poet, who is Stephen Spender. Stephen Spender, born on 1909 and died on 1999, was an English poet, novelist and essayist who concentrated on themes of social injustice and the class struggle in his work. He was appointed Poet Laureate Consultant in Poetry to the United States Library of Congress in 1965. He was Professor of English at University College London between 1970 and 1977 and then became Professor Emeritus. Now let's discuss about the title and poem's background. As you are seeing, the title is An Elementary School Classroom in a Slum. तो क्लियरली मेंशन हो रहा है कि एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की बात हो रही है. एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल, जो कि स्लम एरिया में है. हमारे यहाँ ऐसे स्कूल्स को, ऐसे प्राइमरी स्कूल्स को म्युनिसिपैलिटी स्कूल भी बोला जाता है. So Stephen Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. Through the example of slum children, he attacks those who are exploiting the weaker section of society. Weaker section of society मतलब कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर क्लास के लोग किस तरह से दबाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका जिक्र किया गया है इस पोएम में. Now I am going to tell you stanza-wise explanation. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now the explanation is, the poet here describes the pathetic and miserable condition of the children sitting in a classroom in a slum school. इस स्टैंजा में पोएट ने एक स्लम स्कूल के क्लासरूम में बैठे बच्चों की दीनहीन दशा का, उनकी दुर्दशा का जिक्र किया है, वर्णन किया है. The children's faces are unlike the usual children of schools. इन बच्चों के चेहरे यूजुअल बच्चे यानी नॉर्मल बच्चों के चेहरों से बिल्कुल अलग हैं. They are far away from the beautiful sights of nature. ये नेचर के, प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों से बहुत दूर हैं. They look weak and hungry. वो बिल्कुल कमजोर और भूखे से नजर आ रहे हैं. Their unkempt hair looks like rootless weeds on their pale faces. उनके unkempt hair मतलब मेसी और untidy hair, जो उनके पीले चेहरों पर बिल्कुल weeds यानी खरपतवार की तरह बिखरे हुए से हैं. Like other school children who are usually energetic and full of life, these children seem withered and lifeless. The children of the slum are also unwanted in society, just as weeds are unwanted in a garden. Children जो आपने देखा होगा कि जो और स्कूल के बच्चे, नॉर्मल स्कूल के बच्चे होते हैं, वो फुल ऑफ लाइफ और एनर्जेटिक होते हैं और खुश दिखाई देते हैं. ये बच्चे उनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं. और जिस तरह से एक गार्डन में वीड्स यानी खरपतवार, जो एक्स्ट्रा घास फूस उग जाती है जिसको साफ करके फेंक दिया जाता है, वो जिस तरह से बगीचे में या गार्डन में खरपतवार अनवांटेड होती है, उसी तरह से ये बच्चे ऐसा लगता है सोसाइटी के लिए भी अनवांटेड है.
girl in classroom is very depressed. She keeps her head down, being burdened by sad thought. The girl is probably physically and mentally exhausted due to her poverty. एक लंबी सी लड़की क्लासरूम में बैठी है जो कि बिल्कुल डिप्रेस दिखाई दे रही है। वो कंटिन्यूअस अपना सर झुकाए हुए लगती है और ऐसा लगता है कि उसका सर बिल्कुल झुका हुआ है और अपनी पॉवर्टी से, अपनी प्रॉब्लम्स से लाइफ की बिल्कुल वो बोझ तले दबी हुई सी है। द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट इन अ बेटर सिचुएशन ईदर। जो और बच्चे क्लास में बैठे हैं वो भी इस सिचुएशन से अलग नहीं है। जस्ट लाइक द गर्ल हु इज बर्डन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ, देयर इज अ बॉय सिटिंग इन द क्लास who is as thin as paper, undoubtedly because of malnutrition. He has big eyes like those of a rat. और बच्चों की भी कंडीशन इससे कुछ अलग नहीं है जैसी उस लड़की की है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। एक लड़का किनारे बैठा हुआ है, बिल्कुल वो इतना पतला है जैसे कि कागज होता है, बिल्कुल मालन्यूट्रिशन की वजह से। अनडाउटेडली मालन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। ऐसे बच्चे जिनको पूरा खाना पीना नहीं मिलता और जिस तरह से दुबले पतले वो दिखते हैं वो बच्चा वैसे ही दिख रहा है और उसकी आंखें चूहे की आंखों जैसी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। एक बच्चा और है जो बिल्कुल उसने अपने फादर की बीमारी को इनहेरिट कर लिया है। हेरिडिटी आप समझते हैं, फादर में एक बीमारी होती है वो बिल्कुल उसने इनहेरिट कर ली है। उसकी हड्डियां आर्थराइटिस की वजह से ट्विस्टेड हैं, मुड़ गई हैं और बिल्कुल वो बैठा अपनी डेस्क पर पोएम को रिसाइट कर रहा है। There is another sweet boy sitting in the back of the class. एक और लड़का है स्वीट सा, यंग सा, जो बैक ऑफ द क्लास बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है क्लास के और वो क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। कहाँ? खिड़की से बाहर एक ट्री दिखाई दे रहा है जिसके अक्सर गिलहरी वगैरह कोटर बना लेती हैं ब्रांचेज में उसकी, पेड़ की। वहां बैठ के एक गिलहरी खेल रही है और उसका वो देख रहा है और बिल्कुल अपने ड्रीम में खोया हुआ है जैसे। उसको उस क्लास से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्लास का जो डल एटमॉस्फेयर है उससे परे है, वो बिल्कुल अपनी ड्रीम में खोया हुआ है और ही इज कंटिन्यूअसली वॉचिंग दैट स्क्विरल इन द ट्री। That's all about the stanza 1. Now moving to stanza 2. On star cream walls, donations. Shakespeare's head. Cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled, flowery, Tyrolese valley. Open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of worlds. Now the explanation is, in this stanza, the poet described the dirty classroom. The walls of the classroom are pale and dirty and give a rather unpleasant feeling. On the walls are displayed the names of people who have given donations. There is a picture of Shakespeare on the wall. The pictures of domes of big cities represent the quality of life in those cities. The early morning sky is shown as cloudless in another picture. इस स्टैंजा में पोएट क्लासरूम के डर्टी एटमॉस्फेयर को बता रहे हैं। जो वॉल है, दीवारें क्लासरूम की, उसका कलर बिल्कुल पेल और डर्टी सा है जो बिल्कुल देखते ही बिल्कुल अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती है देखकर। वॉल्स पर जिन लोगों ने उस स्कूल को बनाने के लिए डोनेशन दिया है, पैसा दिया है, उनके नाम लिखे हुए हैं। एक पिक्चर है शेक्सपियर की जो कि वॉल पर लगी हुई है और भी पिक्चर्स हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो डोम्स, जो गुंबद होते हैं, उनको दिखाती हुई ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है ताकि उन सिटीज में कैसी लाइफ है वो उन बच्चों को दिखाई जा सके। एक पिक्चर और लगी है जो अर्ली मॉर्निंग का सीन शो कर रही है जिसमें स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस है।
picture of the beautiful Tyrolese Valley, a region in the Austrian Alpine province. एक और पिक्चर है ब्यूटीफुल सी टायरोलीज वैली की, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस में, एडॉन विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लगा हुआ है. द वर्ल्ड मैप विच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज बिग एंड स्मॉल सिंबॉलिकली गिव्स द चिल्ड्रन द होल वर्ल्ड. एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है इस क्लासरूम में बच्चों को पूरी दुनिया का दिखाने के लिए, सिंबॉलिकली. But all these pictures have no meaning to these impoverished children. लेकिन इतनी सारी जो पिक्चर्स लगी हैं वॉल पे, उनका इन बच्चों के लिए जो गरीबी से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं और भुखमरी का शिकार हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है. The word depicted on these walls is not the word of these children. Their word does not contain huge domes or prosperity or the scenic beauty presented in the picture. ये वर्ड जो दीवार पर दिखाई गई है वो इन बच्चों की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है. इन बच्चों की दुनिया का प्रॉस्पेरिटी से, बड़ी बड़ी गुंबदों से, या फिर वर्ल्ड मैप से, वर्ड की खूबसूरती से या किसी पेंटिंग से कोई संबंध नहीं है. अनफॉर्चुनेटली देयर वर्ड इज पेंटेड विथ फॉग, द फॉग ऑफ होपलेसनेस एंड हंगर. बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनका वर्ल्ड, उनकी दुनिया फॉग से, मतलब धुंधली सी है, जैसा कोहरा धुंधला होता है ना, उनके वर्ल्ड में ऐसा ही फॉग छाया हुआ है. कैसा फॉग? होपलेसनेस यानी निराशा का और भूख का. देयर फ्यूचर इज ग्रिम एंड अनसर्टेन. उनका फ्यूचर अंधकार में है और अनिश्चित है. एंड सील्ड विथ अ डार्क एंड डल स्काई. और बिल्कुल एक डार्क और डल स्काई से सील्ड है, घिरा हुआ है. The poet again says that their world is far away from the actual world of rivers and caves. Poet बार बार कहते हैं, दोबारा कहते हैं ये, कि इन बच्चों की दुनिया रिवर्स की दुनिया या खूबसूरती की दुनिया नहीं है. These things are like stars in the sky which they cannot touch. ये चीजें सीनिक ब्यूटी यानी खूबसूरत दृश्य, प्राकृतिक दृश्य और ये प्रॉस्पेरिटी, ये सब इन बच्चों के लिए स्टार्स की तरह है, जो स्काई में वो देख तो सकते हैं चमकते हुए, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, उनके पास नहीं जा सकते. That's all about stanza 2. Now moving to stanza 3. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as tomb. Now the explanation is, the poet calls the portrait of Shakespeare wicked because it is meaningless for children going to a slum school. There is no quality education in these schools. Poet शेक्सपियर की जो पिक्चर लगी है वॉल पे, उसको विकेड शब्द देते हैं, विकेड वर्ड से संबोधित करते हैं, क्योंकि इन चिल्ड्रन के लिए जो स्लम स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ये पिक्चर मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन. ऐसे स्कूलों में एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं होती है. The children here will never learn about Shakespeare's work. यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कभी भी शेक्सपियर के वर्क के बारे में, उनकी पोएम्स के बारे में, उनकी स्टोरीज को कभी भी नहीं जान पाएंगे. The map is also a bad example. दो वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है दीवार पर, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है यहाँ पे. Because for these children their classroom is the whole world for them. क्योंकि इन बच्चों के लिए तो सिर्फ उनका जो क्लासरूम है, बस उनकी पूरी दुनिया वही है. There is no world beyond their poverty, hunger and hopelessness. उनकी poverty, गरीबी, भूख और निराशा, इससे बाहर उनकी कोई दुनिया नहीं है. So these maps are unreal for these children. तो जो ये मैप लगा हुआ है वर्ल्ड का, उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उसका कोई मतलब
नहीं है, वो बिल्कुल अनरियल है। The beautiful world with its offerings like the sun, shapes, love and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. Means जो ये पिक्चर लगा रखा है सन का या शिप का, लव और केयर जो वो दिखाना चाहते हैं, उनका इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको वो प्रोवोक करता है, उनके अंदर जगाता है भावना स्टील यानी चोरी करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्ल्ड की खूबसूरती और ये चीजें वो जिंदगी में कभी भी पा नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर इन चीजों का यहाँ होना सिर्फ उनको प्रोवोक करता है कि वो चोरी करें आगे चल के। They live in cramped holes like hutments and there is no end to their misery. There is a perpetual state of gloom, hunger and despair. वो बिल्कुल सिकुड़े से घरों में रहते हैं जो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं और उनके इस प्रॉब्लम का कोई अंत भी नहीं है। परपेचुअल स्टेट ऑफ ग्लूम यानी उनके कंटिन्यूटी बनी हुई है अंधकार की, निराशा की, ये एकदम नेवर एंडिंग है और होपलेसनेस की, और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। Their bodies look like garbage heaps. They are very skinny and their bones are peeping out of their skin. उनकी बॉडीज गार्बेज हीप्स, कूड़े के ढेरों जैसी है। ये लोग बिल्कुल स्किनी मीन्स बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं और उनकी हड्डियां ऐसा लगता है उनकी स्किन से बाहर निकली जा रही हैं। The state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and lock the broken pieces of a bottle. और इनकी गरीबी का जो इंटेंसिफाइड एग्जाम्पल है, मतलब बहुत बिल्कुल गहन तरीके से जो बताया गया है, वो इससे पता चलता है इस लाइन से कि जो चश्मे इन बच्चों ने पहन रखे हैं उसके ग्लासेस टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको देखकर कि जैसे बॉटल का टूटा हुआ पीस। All of their life is being destroyed here in the slum. इन बच्चों की सारी जिंदगी इस स्लम में बर्बाद हुई जा रही है, खराब हो रही है। The slum is like a blot, as big as doom on the maps of these children. That is the lives of these children. Means उनकी लाइफ यहाँ पे स्लम में बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। ये स्लम इन बच्चों के लिए बिल्कुल उनके जीवन पे लगे दाग जैसा है जो कभी भी एंड होने का नाम नहीं लेता, खत्म नहीं होता, और उनकी पॉवर्टी, उनकी स्थिति कभी भी सुधरती नहीं। That's all about stanza 3. Now I will tell you about stanza 4. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. Now the explanation is, these children will continue to suffer this hell unless government officials like governors, inspectors or educationists who visit such schools come over to help them. पोएट यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये बच्चे, ये स्लम एरिया के बच्चे, उनकी लाइफ इसी तरह सफर करती रहेगी और ऐसी ही नरकीय बनी रहेगी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें इंटरेस्ट न लें। मतलब जैसे गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं या एजुकेशनिस्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम ये स्कूल्स विजिट करते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं, तो वो आगे आकर उन बच्चों की मदद करने को तैयार न हो, तब तक इनकी जिंदगी ऐसी ही बनी रहेगी। The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. Poet हम civilized वर्ल्ड के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है, जो वो थोड़ा निम्न स्तर के हैं और हम अपर क्लास के लोग, ये गैप ब्रिज होना चाहिए, उनके बीच एक ब्रिज, पुल होना चाहिए, दोनों में इक्वालिटी आनी चाहिए। They should offer these children a glimpse of a better world so that the maps become their window to the beautiful and charming world outside. ये सब इन बच्चों को बाहर की दुनिया की एक झलक जरूर दिखानी चाहिए, तो जो ये मैप है वो रियल बन सकता है उनके लिए, उनको वहाँ ले जाना चाहिए, और जो खिड़की है इस स्कूल की वो उनको
बाहरी दुनिया को दिखाने का एक झरोखा साबित होनी चाहिए. Then these windows of the elementary school classroom, which confine all their hopes and dreams, must be broken so that these children can be brought out in the green fields away from the filthy surroundings. तब इस एलिमेंट्री क्लासरूम की, स्कूल क्लासरूम की जो विंडोज हैं उनको ब्रेक किया जा सकेगा, तोड़ा जा सकेगा और इन बच्चों को वहाँ के गंदे वातावरण से निकालकर बाहर हरे भरे मैदानों में लाया जा सकेगा ताकि वो पूरी दुनिया को की खूबसूरती को देख सकें और उसमें जी सकें. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the golden sands under a clear sky. That is, make progress. पोएट की ये डिजायर है, ये इच्छा है कि इन बच्चों को बाहर गोल्डन सैंड, बाहर बलुई मिट्टी में दौड़ने देना चाहिए, एकदम क्लियर स्काई के नीचे. मतलब उनको प्रोग्रेस करने का मौका मिलना चाहिए. They should be allowed to have quality education. आखिर वो भी बच्चे हैं, अगर स्लम एरिया में पैदा हुए तो क्या हुआ, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन पाने का पूरा राइट है, उनको मिलना चाहिए. The poet feels that education can help them immensely because according to him, history is written by those whose languages has the warmth and energy of the sun. पोएट स्ट्रांगली ये फील करते हैं कि एजुकेशन ही वो रास्ता है जो उनको उस गंदे वातावरण से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि उनके मुताबिक, उनके हिसाब से हिस्ट्री वो ही लिख पाते हैं जिनमें सन की, सूरज की गर्मी और एनर्जी होती है और जिनको पूरी एजुकेशन मिली होती है. That's all about the poem. Now I would like to discuss values highlighted and poetic devices of the poem. Children, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि स्टीफन स्पेंडर ने हमेशा सोशल इंजस्टिस पर लिखा है, उनका मेन फोकस, उनका वर्क वहीं पर था. स्टीफन स्पेंडर पोएट makes an appeal to his readers, especially the educated and well-off people, to help the poor children of the slum come out and be freed from their miserable surroundings. His appeal is that these children should be given quality education because education holds the key to their emancipation. मतलब सीरियसली पोएट ये चाहते हैं कि इन बच्चों को उनका राइट मिलना चाहिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, उनकी लाइफ को बेटर होना चाहिए. और हम वेल ऑफ लोगों से, हम लीडर्स से और जो उनसे थोड़ा अच्छी स्थिति में है उनसे उन्होंने ये उम्मीद की है, ये अपेक्षा की है कि हम उनकी, ऐसे बच्चों की मदद को आगे आए ताकि उनका जीवन और उनकी कंडीशन को कुछ सुधारा जा सके. The poet conveys the message that he wants freedom from a life of hunger and misery for the poor children. उन्होंने ये मैसेज दिया सीधा सीधा कि ऐसे पुअर चिल्ड्रन की लाइफ से दुख और ये गरीबी और भूख हमेशा के लिए चली जाए, उनकी ऐसी विश है. He wishes that the children should be provided with quality education. वो बार बार कहते हैं कि इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए. They should be brought out from their filthy surroundings into the comforting lap of nature. उनको उनकी filthy surrounding, गंदा जो एटमॉस्फेयर जहाँ वो रह रहे हैं उनसे बाहर निकालकर और ग्रीनरी में लाना चाहिए और नेचर की गोद में लाना चाहिए ताकि उनको भी खुशी का एहसास हो, उनके जीवन में भी हैप्पीनेस हो. और सीरियसली ही वांट्स, उनको इनइक्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है. ही वांट्स टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन. और उनके लिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोएम. नाउ पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम. Poet aptly uses imagery in this poem. Imagery यानी जब वो कहते हैं उन बच्चों की डिजीज के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में, या एलिमेंट्री क्लासरूम की वॉल्स के बारे में कि उनका पेल डर्टी कलर है, तो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट होती है उस स्कूल की, उस क्लासरूम की, उन बच्चों की. उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है इमेजरी का. सिंपली जब वो चिल्ड्रन फेसेस को रूटलेस वीड्स, खरपतवार से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है. सबसे ज्यादा जो अपने अच्छे फॉर्म में यूज है पोएटिक डिवाइस, दैट इज इमेजरी. एंड द फ्रेज ब्रेक ओ ब्रेक consists of repetition to poetically emphasize the need of these children to come out into the outer world. Break ओ break स्टैंजा 4 में यूज है. ब्रेक वर्ड 2 बार आया है, इसलिए रेपिटेशन का बहुत अच्छा यूज है. These were the poetic devices. Now I want to say
दैट चिल्ड्रन यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे आसपास ऐसे भी बच्चे हैं जो इतने गरीब हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिनके पास खाने को खाना नहीं और एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर हमको आपको ऐसे बच्चे नजर आए तो उनकी मदद करनी चाहिए। और आपके लिए वो पोयम इसीलिए है ताकि आप समझ सकें कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी जगहें हैं जहाँ इस तरह के बच्चे हैं। Now I hope you have enjoyed it, liked it and understood the poem totally. Thank you so much.